मैं समिश्रा फ्रॉम डॉक्टर बीलाल क्लिनिकल लैब से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे पेज डॉक्टर लाइव सेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर। हम सब जानते हैं सर्वाइकल कैंसर से कितनी औरतें पीड़ित हैं। 2018 में WHO के अकॉर्डिंग 5 लाख से ज्यादा औरतें सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उनमें से 3 लाख औरतों की मृत्यु हो गई है। तो इसी के साथ आज जो हमारे साथ स्पीकर इस टॉपिक पे जुड़ी हुई है, उनका नाम है डॉक्टर मृदुल गहलोत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैम को इस फील्ड में मोर देन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैम जयपुर की रिनॉल्ड ऑन्को गायनोकोलॉजिस्ट हैं। तो थैंक यू सो मच मैम अपने वैल्यूएबल टाइम में से हमें कुछ समय निकाल कर देने के लिए। और साथ के साथ मैं अपने दर्शकों को भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनके कोई भी सवाल हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और हम कोशिश करेंगे कि इस लाइव सेशन के दौरान आप सभी के सवालों का हम जवाब दे सकें। और ज्यादा से ज्यादा आप इस लाइव को और इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि हम ये इंफॉर्मेशन इंडिया के हर एक कोने में पहुंचा सकें। तो अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे मैं आप लोगों को मैम से कनेक्ट करती हूँ जो कि हमें इस टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो वेलकम मैम एंड थैंक यू सो मच मैम आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। Thank you, Samishta, for taking this talk today on cancer cervix. In fact, all the gynae cancers are preventable. All gynae cancer preventable. When I say then cancer cervix is most important. Then breast cancer is also preventable. Endometrial cancer is also preventable. Of course, the ovarian cancer is not preventable, but if we go for the screening, it can be prevented if we are aware of this. As far as the cervical cancer is concerned, it's the only cancer that can be prevented in pre-cancer stage. So it has. मैम तो हम यूं कह सकते हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं 100%. In fact, the cervical cancer has a pre-cancerous period of about 6 to 8 years before it appears. So we have a window of 6 to 8 years. If the patient goes for the checkup, even for the simple pap smear, these type of cancer can be detected in its early stage rather in the pre-cancerous stage, not even when the cancer has developed. But unfortunately, when this cancer is preventable 100%, unfortunately we are getting this type of cancers in the late stage. Maybe this is because the patients are not aware of the screening tests that we are existing, and that's why the deaths are as equal to as the breast cancer. So awareness is very, very, very important. And the second important thing, now we have HPV vaccination also, and there's a 99% if the lady or the girl get vaccinated at the age of 10 to 12 years before intercourse or before getting married at the age of 16, 17, this is 100% successful. So we should get the opportunity of having vaccination, and it should be popularized like the TET-vac. We are each and every person now knows that whenever you have an injury, आपको TET-vac लगवाना ही लगवाना है. So we can equate this with the pap smear can be equated with the TET-vac injections, that it is so preventable. And then the vaccination, HPV vaccination is very, very important so that it can be prevented from the childhood. ओके तो मैम वैक्सीनेशन होते हैं क्या ये किसी एज में लगवाने होते हैं या फिर जब हम अपने डायग्नोसिस के लिए जाते हैं तब हमें लगवाने होते हैं? Ideally, the young girls should get at the age of 10 to 11, 10 to 12 years. That is the important age when they should get. The three doses of vaccination can be given. First dose is the dose 1. And the second to be repeated after 1 month, and the third dose will be repeated after 6 months. Okay. And that gives a full coverage to a young lady that she will not develop a cancer cervix in old age. मैम मेरी एक और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आई है कि मैम ये जो अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट होती है जैसा भी आपने बताया पैप स्मेयर, तो मैम इसे हमें कितने ड्यूरेशन में, एक अगर गर्ल है या एक कोई लेडी है तो उनको किस ड्यूरेशन में ये टेस्ट करानी चाहिए या स्क्रीनिंग?
इसको हम हमेशा दो में डिवाइड करते हैं, वो पेशेंट जो हाई रिस्क ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है और वो पेशेंट जो लो रिस्क ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है। अगर मैं हाई रिस्क ग्रुप ऑफ पेशेंट की बात करूंगी तो वो सारे पेशेंट जो genetically induced है, means if there is any history of cancer in the family or to the mother or to the mausi or to sister, these are the relatives like mother, mausi and the sisters having cancer cervix in the family, then these are the high risk group of patients. Then important is that multiparity, those who are having children, more than 3-4 children, they are having chances of developing cancer cervix. The third is all the patients, those who are smoking, their immunity is low. So all these patients who have a tobacco chewing or smoking, and these are the patients they are going to be have. Then the prostitute, they have multiple partners. Those patients who have multiple partners, they also are the most risk of having cancer cervix. So ma'am, it is hereditary, ma'am, तो फिर ये genetic test है? If you compare, Samishta, it's not a hereditary as far as the cancer cervix is concerned, because cancer breast and the ovarian cancer, they come into the category of genetic positivity. But cancer cervix, but the history of course is important. It's not genetically proved, but our history is of course more important. तो मैम अगर हम ऐसा देखें कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर जो लाइफ स्टाइल उनके थोड़े से चेंजेस रहते हैं या ओवर ड्रिंक करते हैं, तो क्या इज इट पॉसिबल मैम कि उनको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? They are high risk group of patients. It's not that they will those who are smoking going to get the cervical cancer. It's not like that. But they are at the high risk. On the whole, those who smoke have a low immunity. Okay. And this low immunity, then they are more liable to get any of the patient, maybe a lung cancer or the cervical cancer or any other type of cancer, because that belongs to your lifestyle also. So your immunity is good, then your chances of having developing cancer is less on the whole. ओके मैम, एक्चुअली हमसे एक कमेंट बॉक्स में सवाल किया गया है मैम कि क्या ये जरूरी है मैम कि जो प्रेग्नेंट है उनको सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है और वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है? इज इट पॉसिबल मैम? No, if the patient being developed, actually if we have diagnosed and we know that the patient is having cancer cervix, patient should not become pregnant because the chances of spreading the disease is more. Okay ma'am. If the patient is in the precancerous form, means the dysplasia is there, though the pap smear is positive, not the cancer is positive. We have to divide the treatment into two, the precancer part and the cancerous part. So cancer patient, if the patient develop the cancer, they should not be allowed to get into the pregnancy. But if patient is the precancerous part, which lasts from 6 to 8 years, we have the various treatment management for these cases, and they are on the basis of the outdoor procedures. Like we can do for electric cautery, cryotherapy, conization, there are so other things. And then when the patient is once okay, then we can ask her to go for pregnancy. ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी कम की। मैम अब हम और हमारे ऑडियंस जानने चाहेंगे कि इस रिस्क फैक्टर को अपन कम कैसे कर सकते हैं मैम? इस फैक्टर्स को डेवलप करके अगर हम हमारी जो पेप स्मीयर वाला जो फर्स्ट तो when the young girl by giving the vaccinations it can be prevented, and the secondly when the patient is at the age of 25-30, patient has crossed that stage where the vaccination is going to be effective, then we can go for the pap smear. Pap smear is nothing but the collection of the cells from the cervix. Cervix is called the uterus, और सर्विक्स मीन्स यूट्रस का जो मुंह होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। वहाँ पर कुछ नॉर्मल सेल्स होती हैं जो कि धीरे धीरे करके डेवलप होके वो कैंसर में डेवलप हो जाती हैं। बट ये वहाँ पर कैंसर से पहले प्री कैंसर स्टेज में कम से कम 6 से 8 साल तक रहती हैं। ओके, एंड नाउ इट हैज प्रूव्ड दैट इट्स बिकॉज ऑफ एचपीवी वायरस इन्फेक्शन। तो धीरे मतलब मैम, यस मैम, this HPV virus infection is there, and the HPV virus infection is proved as is a sexually transmitted disease. Okay, मतलब basically मैम pap smear play important role to detect cervical cancer मैम।
cervical cancer. So when the patient comes to the doctor, by simple speculum examination, we can see that any ulcer is there. We can go for the cytology, that is Pap smear test. We can take swab test for the HPV infection. So these are the basic tests when is done when the patient comes to the doctor. मैम बेसिकली ये सारे टेस्ट सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं, राइट मैम? यस। ओके मैम, थैंक यू मैम, आपने हमें बताया, आपने हमें सिम्टम्स बताए, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, अब डायग्नोज कैसे होते हैं, आपने ये बताया। मैम अब मैं आपसे जानना चाहूंगी और हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि हम जिसको सर्वाइकल कैंसर है वो इसको मैनेज कैसे करें मैम? मैंने आपको बोला कि सर्वाइकल कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड इन 2 स्टेज, प्री इन्वेजिव स्टेज एंड द इन्वेजिव स्टेज। प्री इन्वेजिव स्टेज जो होता है वो 100% कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कि बच्चेदानी को बचाया जा सकता है, उसका हिस्टेक्टमी करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा इन्वेजिव स्टेज है, जबकि कैंसर डेवलप हो चुका है बायोप्सी के द्वारा। जब कैंसर डेवलप हो चुका है और हमें तो भी उसको हम अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। एक वो की स्टेज 1 जहां पर सर्जरी हम कर सकते हैं, वो क्लिनिकली हमें पता लग सकता है कि स्टेज 1 है, MRI भी हमारी हेल्प कर सकती है। और दूसरा, हम जब स्टेजिंग करते हैं तो अगर स्टेज 1 में पेशेंट है तो दैट शी कैन बी टेकन फॉर द सर्जरी, राइट? इफ द पेशेंट इज स्टेज 2 then we cannot do for the surgery, and these patients require surgery plus radiotherapy. The advanced 2B is there. If 1 is there, 1B is there, surgery can be done. If the 2B is there, 2B means the cervix has involved the cancer has involved the cervix and spread above lateral to the cervix, and then means this patient is not fit for surgery, and these patients should be taken for the radiotherapy and the chemotherapy. ओके, मतलब मैम जिस पेशेंट को है वो रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी के थ्रू खुद को ट्रीट कर सकते हैं, और उनके रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे हैं जितने सर्जरी के। ऐसा नहीं है कि हम अगर सर्जरी नहीं कर सकते तो उनका प्रोग्नोसिस खराब होगा। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के भी रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, क्योंकि आजकल कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में भी काफी एडवांसमेंट हो गया है। मैम मैं आपका सजेशन जानना चाहूंगी, अगर किसी पेशेंट को ऐसा है तो उनको सर्जरी के थ्रू जाना चाहिए या फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के थ्रू खुद की ट्रीटमेंट कराना चाहिए? बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा मैम? देखिए, नहीं, इसकी सबकी हमारे पास ना गाइडलाइंस होती हैं। कैंसर कैन नॉट बी ट्रीटेड कि मेरी मर्जी है तो मैंने इसकी सर्जरी कर दी और दूसरा पेशेंट है उसकी मैंने कीमोथेरेपी कर दी, ऐसा नहीं है। दे आर गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू विच वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट, and guidelines are that for the stage 1 patient you can take surgery, but no to the stage 2 and 3. These patients are not fit for surgery because there is a reason. कैंसर जितना हमको दिखता है उससे आगे फैला हुआ होता है। लेडीज में आगे की तरफ ब्लैडर होता है, पीछे की तरफ रेक्टम होता है, तो चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग द कैंसर टू द ब्लैडर एंड द रेक्टम इज देयर. So until unless you remove the bladder on the rectum, you are not going to justify the surgery. And that is a very exaggeration what we call, but it's a major surgery which is not advisable to these patients. And that's why रेडियोथेरेपी क्या करती है, वो कैंसर सेल्स को वहां का वहीं जहां होता है वहीं का वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है। सर्जरी में हम उस लीजन को निकालते हैं, बट रेडियोथेरेपी में और कीमोथेरेपी में उस लीजन को वहीं का वहीं स्प्रेड करने से रोक लेते हैं। तो लेडीज का ये है रहता है कि जब भी स्टेज 2 आती है कैंसर सर्विक्स की, तो ऑलवेज गो फॉर कीमोथेरेपी एंड द रेडियोथेरेपी, दैट इज द बेस्ट। ओके मैम, मेरा आखिरी सवाल है, आखिरी तो नहीं कहूंगी क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है मैम हमारे ऑडियंस के लिए, और मैं भी एज अ फीमेल जानना चाहती हूँ मैम कि अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर है तो आप क्या उनके लिए मैसेज या सजेशन देना चाहेंगी मैम? देखिए, अपनी बॉडी को जानना बहुत जरूरी है। सर्वाइकल कैंसर, अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल आ रहे हैं और उसके बाद भी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, मींस पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग है, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कोई अबनॉर्मल सेल्स हैं बॉडी में। अगर आप कोई भी लेडी अगर इंटरकोर्स के टाइम थोड़ी भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है, ये दूसरा इंडिकेशन है कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार पीरियड चले जाने के बाद में अगर पीरियड आता है, and that everybody should know this, that पीरियड जाने के बाद अगर वापस ब्लीडिंग होती है,
After 6 months of stopping then we have to consider again as a cancer. That may be a cancer cervix or the cancer endometrium, and these patients again should be investigated. So all the postmenopausal patients, all the patients who have a bleeding during intercourse, and all the patients who have a bleeding in between the periods, they all should be investigated properly. तो मैम बेसिकली अगर ये सारी चीजें सिम्टम्स अगर हमें दिख रही है तो बेसिकली फिर उसके बाद हमें एक कंसल्टेंट्स के पास जाकर उनको दिखाकर फिर वे ऑफ ट्रीटमेंट जानना चाहिए। Yes. और थैंक यू सो मच मैम। मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये 10 से 15 मिनट में चेंज हुआ और 15 से 20 मिनट में मैम। तो थैंक यू सो मच मैम, ये काफी अच्छा आपने हमें इंफॉर्मेशन दिया है रिगार्डिंग सर्विक्स कैंसर मैम, जो हमारे लिए बहुत, हम सब जानते थे सर्वाइकल कैंसर बहुत सारा सुने हुए थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि इतने इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें है। एक मैसेज मैं और देना चाहूंगी, केवल ऑपरेशन ही इम्पोर्टेंट नहीं, द फॉलो of the case is also important. Once you get operated, then this follow up is very important. अगर आप रेडियोथेरेपी या सर्जरी कराते हैं, अगर आप रेडिएशन कराते हैं, सभी केसेस में फॉलो अप बहुत जरूरी है। वो पैट स्कैन के द्वारा भी हो सकता है, MRI के द्वारा भी हो सकता है। एंड वंस द पेशेंट इज हैविंग कैंसर, एनी टाइप ऑफ कैंसर, शी शुड बी कम फॉर द फॉलो अप एवरी ईयर फॉर द डॉक्टर जहाँ से उसने ट्रीटमेंट लिया है। कैंसर पेशेंट्स का फॉलो अप बहुत जरूरी है। हमारे पेशेंट फॉलो अप हमेशा भूल जाते हैं, मतलब ऑपरेशन करा लिया आप सब ठीक हो गए, शायद हम वही सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कैंसर का, नॉट ओनली इन द सर्वाइकल कैंसर, एवरी कैंसर, दैट फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बेसिकली मैम अगर हम फॉलो अप नहीं लेते हैं तो क्या हमें दोबारा कैंसर होने के चांसेस है? देखिए, ये जो सर्वाइकल कैंसर है, जैसे लंग्स में मेटास्टेसिस हो सकता है, लीवर में मेटास्टेसिस हो सकता है, बोन में मेटास्टेसिस हो सकता है, ब्रेन में मेटास्टेसिस, अगर कोई भी सेल जो आपकी कहीं भी एक बार जाके रह गई और हो सकता है वो साल 2 साल में वो वहाँ पे फिर डेवलप कर जाए और उसका मेटास्टेसिस हो जाए, तो इसलिए ये जरूरी है कि फॉलो अप बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए सारे कैंसर पेशेंट्स। मैम डेफिनेटली हम ये फॉलो अप वाले पार्ट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे मैम। अगर किसी भी पेशेंट को सर्वाइकल, ऑडियंस अगर किसी भी पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फॉलो अप जरूर लें। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगी पूरे ऑडियंस के साइड से, पूरे बीलाल ऑर्गेनाइजेशन के साइड से कि आप हमारे साथ जुड़ी रही, हमारे सवालों का जवाब दिया मैम। हम आशा करते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसी किसी टॉपिक के साथ आपसे जुड़कर अपने ऑडियंस को बेहतर एक ट्रीटमेंट का वे बता पाएंगे। तो धन्यवाद मैम एंड धन्यवाद ऑडियंस। थैंक यू सो मच।